everyone. I hope you have gone through the sessions on list and tuple. In this session, we will talk about dictionaries. See, string, list and tuple, they are the sequences and we call them as collection of values. Today we are going to discuss about dictionary. Dictionary भी collection of values है पर ये sequence नहीं है. String, list and tuples, they are called as sequences because they are ordered list. Whereas dictionary is an unordered list. List and tuples both are collection of values. आप उस पर numeric collection कर सकते हैं, string collection कर सकते हैं और they can be heterogeneous collection having numeric values as well as string values. Even dictionaries, they are collection of heterogeneous values. इसमें numbers, string, date, logical data किसी भी तरह का collection हो सकता है. Then what makes dictionary different from list and tuple? आपने dictionary तो देखा ही है जिसमें index होता है, जिसमें words होता है, उस words के meaning होते हैं. So it is always a combination of word and its meaning. Similarly, dictionary में जो भी values हैं, they are identified by key. It means dictionary is a collection of values in form of key value pair. Suppose हमारे पास एक list है जिसमें 101 which is code, Geeta which is name, 9893448088 which is the number. So this is collection of values in form of a list or it can be in form of a tuple. But अगर हमें यही चीज एक डिक्शनरी के फॉर्म में रखना है तो हमें हर वैल्यू को एक की देना होगा. जैसे कि 101 is code, GEETA Geeta is name, 9893448088 is the mobile number. So when you create a dictionary, you have to give these values a key and every value is identified by a key. Now let's see how to create 2-3 dictionaries. Suppose if you want to create a dictionary named student, तो आप सबसे पहले जो भी डिक्शनरी का नाम देना चाहते हैं वो टाइप करेंगे. Then equals to list डिपेक्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल डिपेक्ट होता है राउंड ब्रैकेट में और डिक्शनरी बनाते समय आप यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस. अब कर्ली ब्रेसेस देंगे. लिस्ट में आप डायरेक्टली वैल्यू देते हैं पर डिक्शनरी में यू हैव टू मेक यूज ऑफ की वैल्यू पेयर. तो सबसे पहले रोल नंबर, तो की हम देंगे रोल नंबर एंड उसका वैल्यू कोलन से सेपरेट करके. This is your first value, so the value is 101 and key is RNO. Second item या second value को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, की देंगे name and then the value. Similarly, third key mobile colon the value and you will terminate it with curly braces. So this has created dictionary called student. Let's see. One thing you need to remember, अगर आपका की string data type का है या text value है तो आप उसको single quote में देंगे. अगर आपका की numeric है तो we don't need to use single quote or double quote. For example, if I want to create a dictionary with numeric key, so I will say days, this is the name of dictionary, 1 is the key and 1 is Sunday. Second value is depicted by key 2 Monday, comma 3 is the key and the value is text, so I need to make use of single quote. Then fourth value colon. In this way, you can create a dictionary. So when I print days, you will have this list. So you can have keys both in form of text or in form of a number. List values, tuple values और string values, they are ordered values. आप उसके index value से value को access कर सकते हैं. लेकिन डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी आप इसके इंडेक्स वैल्यू से आप इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ की टू एक्सेस द वैल्यू. लेट्स सी हाउ टू एक्सेस वैल्यूज बाय यूजिंग की. नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सेस अ डिक्शनरी. आई हैव अ डिक्शनरी स्टूडेंट जहाँ पर स्ट्रिंग की है और एक और
डिक्शनरी है जेंडर जिसमें न्यूमेरिक की है। नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ डिक्शनरी। I'll say roll number. So this will extract roll number from the dictionary by its key RNO and print it. Similarly, if I want to print the name of dictionary within square bracket, within single quote, the key and it will give you the name. अगर आपका की न्यूमेरिक है तो आपको सिंगल कोट यूज नहीं करना है, आप सिंपली डिक्शनरी का नाम देंगे और उसका ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरिक की देंगे। इस तरह से अगर आपने कोई भी की ऐसा स्पेसिफाई किया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स गोइंग टू गिव यू एरर। Dictionary is made up of key values or key value pair is one item. So when you say dictionary.keys, that gives you the list of keys in that dictionary. When you say dictionary.values, it gives you the list of values in that dictionary. When you say dictionary.items, so this function returns you key value pair in form of items. जैसे आप list, tuple, string को traverse करते हैं using for loop, similarly using for loop you can traverse through our dictionary. Now let's see how to traverse the dictionary by using keys or values or using items. आप डिक्शनरी में ट्रैवर्स कर सकते हैं की से, वैल्यूज से या आइटम से। Now let's see how to traverse through a dictionary using keys, values or items using for loop. If I say for k in student, print k. So जब आप सिर्फ डिक्शनरी का नाम देते हैं तो वो कलेक्शन बनाता है उसके कीज का, यानी RNO, नेम, एज एंड मार्क्स। इट इज इक्विवेलेंट टू कि आप स्टूडेंट डॉट कीज बोले। दिस वे, तो जब आप स्टूडेंट बोलते हैं या स्टूडेंट डॉट कीज बोलते हैं, इन दोनों केस में जो कलेक्शन बनता है वो कीज का बनता है और उस कलेक्शन में से एक एक की के वेरिएबल में आती है और आप इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं वैल्यूज को यूज करके ट्रैवर्स करना चाहती हूँ तो आई से फॉर वी इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे कलेक्शन बनेगा वैल्यूज का इस तरह से। और अगर मैं की वैल्यू पेयर दोनों का यानी आइटम्स को यूज करके ट्रैवर्स करना चाहती हूँ तो आई से आइटम्स, तो दिस विल क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज की वैल्यू पेयर एंड यू कैन प्रिंट द एंटायर आइटम। Just remember, lists are mutable, whereas strings and tuples are immutable. What about dictionary? Even dictionaries are mutable. It means you can extend your dictionary, you can update the existing values, you can insert the values, you can append the values, even you can remove the values from a dictionary. Before we proceed, let's see a few characteristics of a dictionary. First one is they are unordered sets. जैसे आप लिस्ट और टपल बनाते हैं तो उसमें जो भी वैल्यूज हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि हर वैल्यू एक इंडेक्स नंबर पे होती है और लिस्ट एंड टपल दोनों का इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होता है। बट जब आप एक डिक्शनरी बनाते हैं तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को उसके इंडेक्स से नहीं बल्कि उसके की से रिकग्नाइज करते हैं, बिकॉज डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। सेकेंड इज दैट डिक्शनरीज आर नॉट इंडेक्स बाय नंबर्स बट दे आर इंडेक्स बाय कीज। तो जो भी आपको एक्सेस करना है, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसके की से उसको एक्सेस करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल कि अगर हमारा डिक्शनरी का नाम डिक्ट 1 है और उसमें की है नेम, अगर हमको नेम की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे डिक्ट 1 और उसका ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में नेम, बिकॉज ये की स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, देयरफॉर वी नीड टू एम्बेड दिस विद इन अ सिंगल कोट। जबकि आप लिस्ट और टपल की जो वैल्यूज होते हैं उसको आप एक्सेस करते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से, जैसे कि लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए, या टपल 1 और जो भी उसके इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो आप इंडेक्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिक्शनरी बनाते हैं और उसके अंदर जो कीज होते हैं दे मस्ट बी यूनिक। एक डिक्शनरी में
जो आप की बना चुके हैं, आप उस की वर्ड को, उस की को रिपीट नहीं कर सकते। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल है, टपल स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, लेकिन डिक्शनरीज दे आर म्यूटेबल। हम म्यूटेबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी कैन चेंज द वैल्यू, वी कैन इंसर्ट मोर वैल्यूज, वी कैन डिलीट एग्जिस्टिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक डिक्शनरी है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसमें दो कीज हैं, आरोनो एंड नेम। आरोनो की वैल्यू है 101 और नेम की वैल्यू है टीना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ नेम की, so I can just say the name of dictionary student, स्क्वायर ब्रैकेट में की जिसकी वैल्यू हमें चेंज करना है और इक्वल्स टू करके हम नई वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे आप ये स्टेटमेंट रन करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है स्टूडेंट, उसका जो की है नेम, उसकी वैल्यू टीना से इट विल बिकम टीना शर्मा। Not only you can alter existing value, but you can add new key value pair. You can delete values from the list as well. चलिए देखते हैं डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। जब भी आप डिक्शनरी बनाएंगे, जो भी आप डिक्शनरी को नाम देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, और डिक्शनरी बनाते समय ही हम इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं की वैल्यू पेयर से। तो जैसे पहला की है हमारा आरएनओ, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए हमने इसको सिंगल कोट में लिखा, और वैल्यू क्योंकि वैल्यू नंबर है इसलिए विदाउट सिंगल कोट में लिखा। दूसरी वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ में, और दूसरी वैल्यू है हमारी नेम एंड कोलन के बाद, क्योंकि जो नेम की वैल्यू है वो है स्ट्रिंग, इसलिए इसको सिंगल कोट में रखेंगे इस तरह से। तो ये आपने डिक्शनरी बनाई और बनाते समय ही आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया। टू सी द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी वी सिंपली राइट स्टूडेंट एंड इट विल डिस्प्ले मी द डिक्शनरी। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप एम्प्टी खाली डिक्शनरी बनाते हैं और बाद में उसके वैल्यूज को हम फिल करें। तो अगर आपको खाली डिक्शनरी बनानी है तो आप बोलेंगे स्टूड और कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी देके, ये भी डिक्शनरी क्रिएट करता है। या फिर आप बोल सकते हैं स्टूड एंड यू कैन कॉल फंक्शन डिक्ट। ये दोनों तरीके से आप एम्प्टी डिक्शनरीज बना सकते हैं। तो एक आपने बनाया स्टूड जो एम्प्टी है, और दूसरा आपने बनाया स्टूड1 वो भी एम्प्टी है। अब इस एम्प्टी डिक्शनरी में अगर हमको वैल्यू करना है तो वैल्यूज आर ऑलवेज इन पेयर, की वैल्यू पेयर। तो आप इसको किस तरह से करेंगे? जैसे कि स्टूड हमारा डिक्शनरी का नाम है और हम पहला की इसमें ऐड कर रहे हैं नेम एंड उसकी वैल्यू, इस तरह से। अब आप देखेंगे अपना डिक्शनरी, सो इट हैज 1 की वैल्यू पेयर। अगर इसमें मुझे दूसरा की वैल्यू पेयर बनाना है तो अगेन द नेम ऑफ डिक्शनरी एंड हियर द कीवर्ड इज मोबाइल एंड द वैल्यू इज विद इन सिंगल कोट अगेन मोबाइल नंबर। I made a mistake here, so I need to rectify here like this। क्योंकि आप उसकी वैल्यू को दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट देके इक्वल्स टू का साइन, बिकॉज वी आर असाइनिंग दिस की अ वैल्यू दिस वे। नाउ यू सी योर डिक्शनरी, इट्स दिस। सिमिलरली जो आपका स्टूड1 नाम का खाली डिक्शनरी बना हुआ है, हमारे पास जो स्टूड1 नाम का डिक्शनरी है इसमें हमने न्यूमेरिक की बनाया और इसकी वैल्यू असाइन की टेक्स्ट। अगर हमें दूसरा देना है तो नेम ऑफ डिक्शनरी एंड दूसरा की विच इज न्यूमेरिक, सो आई एम नॉट यूजिंग सिंगल कोट, एंड द वैल्यू दिस वे। नाउ दिस इज योर स्टूड1 डिक्शनरी विद न्यूमेरिक की and string value. So this is how you can create first empty dictionary by using curly braces or dict function, and then you can keep on adding data to the dictionary. तो अभी हमने देखा कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज आपने डिक्शनरी बना ली है और अब आपको लगता है कि कोई वैल्यू को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आइटम्स डिक्शनरी में प्राइस की वैल्यू को 100 से हमें 105 करना है। तो बहुत आसान है, आप सिंपली अपने डिक्शनरी का नाम दीजिए और जिस की वैल्यू आपको चेंज करनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करिए। क्योंकि आपका की स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट में रखेंगे and you can directly assign the new value in this way. Now let's see item dictionary. The value 100 has been changed to 105. Let's do it again. जो भी आपका डिक्शनरी का नाम है आप की स्पेसिफाई करिए and assign a new value. This way.
कभी कभी हमारी डिक्शनरी तैयार होती है और हम अपनी डिक्शनरी में से कुछ आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं. आई जस्ट वांट टू रिपीट, कोड, नेम एंड प्राइस दे आर कीज. 101 is pen and 100 they are values, and one key value pair is an item. So suppose if I want to delete one item from a dictionary, then there are three methods using which you can delete the item from a dictionary. The first one is pop, second is pop item, and third one is del function. Now let's see all of these one by one. जो pop function है, आप इसमें हमेशा mention करेंगे key. So it will remove the item from the dictionary whose key is given to this method. So let's see that. I'll say items dot pop and specify the key, for example name. So this will remove the item value as well as the key and it will return you the value जो भी वो delete कर रहा है. तो हमने जब pop किया इस key से इस item को, तो इसने इसकी जो भी value है वो यहाँ पर display की. So in this way you can make use of pop. Now let's see how many items are there in your dictionary. There are 2 items only. Similarly, if I want to delete any item, but हमारा जो second method है वो है pop item. Pop item delete करता है डिक्शनरी से किसी item को, but only thing that you need to remember कि it always removes the last inserted item in the dictionary. मतलब आपने जो भी लास्ट आइटम आपने इंसर्ट किया होगा वो उसी को रिमूव करेगा. अगर हम यहाँ बोलते हैं items dot pop item, so it will remove price because price उसने लास्ट में इंसर्ट किया था. तो pop item को यूज करके you can always remove the last inserted item from a dictionary. Now the third one is del. Now using this method you can remove an item or you can remove the entire dictionary. Now let's see. अगर हम बोलते हैं del, डिक्शनरी का नाम is items और item का कौन सा की आपको रिमूव करना है. So now because I'm left with only one item, so let me add one more item to this. List like this. I have 2 items in my dictionary. Now suppose if I want to delete this item, so I can make use of delete function like this, del, the name of dictionary items, and within square bracket you specify the key. So I'm specifying the key item name. Now let's see dictionary again. So you can pop a particular item using key. You can delete the last inserted item from a dictionary using pop item, or even you can delete or remove an item from the dictionary using del function, where you need to specify del function, the name of dictionary, and the key of the item which you want to delete. If I say del and I say items, and if I forget to specify the key of the item, then it is going to remove the entire dictionary.